तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या कास्ट इन पॉलिटिक्स जो है, कुछ लोग इसको मानते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एक ख़राब चीज़ है, और क्या कास्ट को पॉलिटिक्स में होना चाहिए या इसको जो है ये पॉलिटिक्स के डोमेन से बाहर होना चाहिए और एक हमें कास्टलेसनेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली आज इसी बात पे हमारी डिबेट होगी, और जो लोग इसके फेवर में बोलना चाहते हैं वो फेवर में बोले कि हाँ, कास्ट जो है पॉलिटिक्स में एक ज़रूरी चीज़ है और किस तरीके से ज़रूरी है, और जो लोग इसके अपोज में हैं वो बोलें कि हाँ क्यों और किस वजह से जो है कास्टलेसनेस हमारे सोसाइटी में आना चाहिए और कास्ट जो है पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होना चाहिए। So in democracy, we often see that majorities' opinions only counts. Suppose in the elections also, 5,000 people voted for someone and 6,000 people voted for someone. 6,000 people voted member will get elected, and what about the opinion of 5,000 people? So is that 5,000 people opinions doesn't get matter? So that's what happens. Even though caste, I always feel stability not good, it is not bad or something, because that's the way we have lived. Like from the ancient times it gets more organized and all, and in recent times, of course, we are not getting the, I mean, we are not letting the caste restrictions on the people. Like in nowadays, we often see that any people doesn't get choose their professional career based on their castes. If you want to do the business, there is, you need not to be a vaishya. If you want to do something into, if you want to join in an army, or if you want to be a politician, you might need not to be a shudra and all. So still there is no boundaries beyond the professionalism. But caste in politics is always like, people who come from the majority politics, they always matters their own community opinions rather than neglecting the minorities opinions. So I feel like the stability, like a maintain of the strict law and order has to be maintained. Still we can see the extreme nature of the cats and all. So yeah, I don't want to conclude right now, and I just want to know the discussion further. सबको समान दे दिया गया, तो जो मेजर डोमिनेंस कास्ट है वो भी धीरे धीरे, डोमिनेंट क्लास है वो डोमिनेट करती जाएगी आगे, उनको तो वो रोल ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब जो कह रहे हो कि कास्ट अगर ये है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ डोमिनेंस हो जाती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स बेस हो रहा है तो मेजोरिटी ले जा रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो मौका तो माइनॉरिटी को भी मिल रहा है। Hello. Yes, yes. So in continuation with what Adish and Nitin said, I would like to mention, देखो जो casteism है Indian politics में, या जो caste है, it can never be disappear. Caste is not disappearing, nor it will disappear. और I do completely agree, जो lower caste, अगर caste नहीं होगी Indian politics में तो lower caste का representation भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ना दो व्यूज हैं। एक व्यू जो ये कहता है कि पॉलिटिक्स को हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कास्ट, which is not even possible, or the another view which supports that caste in politics help us to understand the Indian politics, the basic nature of Indian politics. We saw from ancient time that the lower caste has always been, the subject of domination by the upper caste, and they have always been the one suffering. So from ancient to modern time, we have two ideas here, that modernity
which we you know what should I say, we are inspired from the west idea. तो जो हमने modernity लिया है politics and political development का, उसके साथ हमने एक traditional aspect भी रखा है caste का, to represent that uh, ancient norms in our modern phenomena. तो यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, तो आई वुड लाइक टू कोट मिस्टर श्रीनिवास, who persistently mentioned जो caste है, it is so completely accepted by all, including those who are most vocal in condemning it, that it is a unit of social action. तो जो इंडिपेंडेंस के बाद जो मूवमेंट है हमने देखा, उसमें दैट वाज एन अपर कास्ट डोमिनेटेड मूवमेंट बिकॉज दे वर डिसप्रपोर्शनेटली ब्राह्मण्स, राजपूत, कायर्स एंड भूमियाज, एंड it was correctly highlighted by B.R. Ambedkar. Where is lower caste? You talk about politics, you talk about representation, but where is lower caste? That movement, that nationalism has always been inspired by upper caste. सो इफ अगर हम कास्ट को पॉलिटिक्स अलग करते हैं, तो जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है पहली चीज इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि अब जो कास्ट है वो वोटर बैंक बन चुका है। तो अगर हम अलग भी करते हैं तो लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा। अनुष्का, आप कह रहे हैं कि लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी अगर हमने कास्ट हटा दी, अगर हम जी, होल इंडिया में कास्ट को रिमूव करें और वो एकदम बहुत इक्वालिटी हो। यूटोपियन व्यू है हितेश, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिकॉज इंडियन सोसाइटी हैज नेवर वेंट टू सोशल रिफॉर्मेशन। जो हमारी सोसाइटी है उसने कभी ये सब चीजें ना बहुत वो मान ही नहीं सकती इंडियन सोसाइटी। जो हमारी सोशल रियलिटी है उसमें हम कभी भी कास्टिज्म को हटा ही नहीं सकते। और कास्ट इज नॉट बैड इन पॉलिटिक्स, लेट मी टेल यू। casteism is the representation of someone who has always been, you know, the subject of suffering. So caste has या always been there and it is the representation. Yeah, जो इंडियन Anushka, I would कांग्रेस like थी। to ask you one जी। question. Like you are saying हम्म। कि अगर पॉलिटिक्स में कास्ट आती है तो उससे लोअर जो माइनॉरिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अभी पार्लियामेंट हम्म। में कितने एमपीज हैं जो मुस्लिम हैं? बिकॉज अभी तो आई एम कास्ट तो बहुत है। लाइक मतलब सी, हम लोगों का अभी अगर पॉलिटिक्स जो हम है देखें, वो यही हमेशा तो बात कास्ट है, से यही तो कास्ट की पॉलिटिक्स है। देखो मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लोअर कास्ट की। माइनॉरिटी वो सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, आई डू एग्री स्नेहा कि वो प्रॉब्लम्स हैं रिप्रेजेंटेशन वाली, बट हम उनका फिर बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेशन हटा देंगे अगर हम कास्ट हटा देंगे, और कास्ट कोई नहीं हटा सकता है। अगर हम रियलिटी पे बात करें तो कास्ट आप हटा ही नहीं सकते। आप मुझे दो एग्जांपल दे दें, अगर आप इमेजिनेशन को हटा दें और रियलिटी में बात करें, इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और आप मुझे समझाएं कि आप कैसे हटाएंगे कास्ट। Okay, may I? है आपके पास कोई आंसर? हाँ आनंद प्लीज। अ, हमारे देश में अलग-अलग राज्य हैं, हर जगह पर अलग राजनीति चलती है, ठीक है। हम अपने साउथ इंडिया को देख सकते हैं, जहाँ पे केरला है। केरला के अंदर मैं जानता हूँ कि वहाँ पे लोकतंत्र से ज़्यादा अच्छी वहाँ पे व्यवस्था चलती है, जो कि समाजतंत्र की है। मतलब कि समाजवाद को ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। वहाँ पे मुझे कभी भी कास्ट को लेकर कोई फाइट, कोई भी वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं दिखती। ऐसा क्यों? आखिर सी उन्होंने ऐसा दिस क्या इज द किया कि वहाँ पे रॉन्ग कास्टिज़्म व्यू, नहीं है? दिस इज द रॉन्ग व्यू। जो तमिलनाडु है उसमें जो तमिलनाडु, ब्राह्मण केरल, लीडरशिप केरल। थी। आई अच्छा, एम यू सेइंग केरल, सेड साउथ इंडिया। ओके। केरल, केरला आई एम सेइंग। यस ही मेंट एक्सप्लिसिटली केरला, बट ऐसा नहीं है। बट आई थिंक केरला केरला में कास्ट पॉलिटिक्स अगर कम नहीं होती तो वहाँ भी मतलब होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होती केरला में। बड़ा रीजन है कि वो लोग बहुत एजुकेटेड है, दोस्त सबसे मेन रीजन। ऐसा कोई अब मतलब मे ऐसा आई कुछ मे एजुकेशन की आई नहीं है, अगर ठीक बात है। कर मे रहे आई हैं तो आंसर अभी आनंद, मे आई आंसर ह्यूमैनिटी आनंद। वाला केस आ जाएगा। अभी विकास एलिफेंट वाला जब हुआ था, पलक्कड़ गांव जो है जहाँ हिंदू और मुस्लिम्स का रहता है, वहाँ भी तो कास्टिज्म चलता है। अभी जब एक एलिफेंट को जब कुछ या जो एक एलिफेंट की जो डेथ हुई थी उससे जो हुआ था वो भी तो कास्टिज्म था ही। उसको भी तो एक कास्टिज्म से जोड़ा गया था। जो पलक्कड़ है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, इसलिए वो हुआ था। मे आई यस बोलो। विकास। हाँ, तो जैसा कि आनंद ने कहा कि केरला में जो है क्या है कि हमें कास्टिज्म नहीं दिखता है। तो केरला और साउथ इंडिया का जो और नॉर्थ इंडिया का जो कास्ट है, मतलब कि ये कास्ट डोमिनेंस है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। नॉर्थ इंडिया में क्या है कि पर्टिकुलरली जो है अपर कास्ट जो है यहाँ पर डोमिनेंट है, और वो लोग क्या करते हैं कि एक कंसेंसस बनाते हैं कि देखिए कि कास्ट पॉलिटिक्स में आना गलत है।
लेकिन अगर हम केरला और साउथ इंडिया में जाएँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला है, चाहे जो भी साउथ के स्टेट हों, आंध्र प्रदेश हो, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में अपर कास्ट के खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट चलाते हैं लोअर कास्ट के लोग, ठीक वैसे ही सिनेरियो जो है वहाँ पर है। वहाँ पर क्या है कि लोअर कास्ट के लोग जो है पॉलिटिक्स में ज़्यादा डोमिनेंट है, और वहाँ पर क्या होता है कि देखते हैं हम कि कर्नाटका में जैसे चलता है लिंगायत का मुद्दा, तमिलनाडु में जैसे कि चलता है द्रविडियन मूवमेंट, जिसने क्या किया कि एकदम पूरा टोटली जो है ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ था जो वो मूवमेंट चला। उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ पर अभी तक जो द्रविडियन पार्टी हैं, एआईएडीएमके, डीएमके और पीएम की जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब क्या है कि वो एक द्रविड़ मूवमेंट और द्रविड़ मूवमेंट को ही सपोर्ट करती हैं, और सबका जो है ओरिजिन है वो द्रविडियन ही है। तो उस उ इस सेंस में भी देखा जाना ज़रूरी कि वहाँ पर क्या है कि एक कोलिशन टाइप बन गया है द्रविड़ का, तो वहाँ पर क्या है कि जो अपर कास्ट हैं, वो लोग क्या होते हैं वहाँ पर डोमिनेंस में नहीं आ रहे हैं। और अगली चीज़ जो है कि अगर केरला में देखा जाए तो सेम सिनेरियो केरला में भी है, और जो ये बात कही जाती है कि वहाँ के लोग ज़्यादा एडुकेटेड हैं, ये सब है। देखो वहाँ पर क्या है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो उन लोगों के पास चॉइसेस की अवेलेबिलिटी कम है। ऐसी रीजनल पार्टीज़ वहाँ पर नहीं उभरी हैं जो क्या करें कि ये जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं उनको क्या करें कि रिप्रेजेंटेशन दिलवाएँ। और ऑलरेडी जो हम कह रहे हैं कि ये जो जैसे कि लोगों ने आनंद ने शुरुआती स्टेज में कहा कि कास्ट का पॉलिटिक्स में एक गंदा असर होता है। मैं कहता हूँ कि अगर हम कास्ट को पॉलिटिक्स से रिमूव कर दें, तो जो हमारी मेजॉरिटी है, जैसे कि ये कॉमन सा परसेप्शंस है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी विन्स। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी विन्स होती है। आप देखिए कि कितने परसेंट जनरल हैं और कितने परसेंट ओबीसी हैं। ओबीसी और एससी एसटीज हैं, लोअर कास्ट हैं। अगर देखें तो पावर जो है सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम सिनेरियो में, और पहले भी हुआ था और अब भी होता आया है, कि अपर कास्ट डोमिनेंस लगभग हैं तो 20-22%, कहीं-कहीं अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग है। लेकिन फिर भी उनकी डोमिनेंस जो है वो क्या है कि 50% से ऊपर है पावर में, और उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनके जनसंख्या के अनुपात में कहीं ज़्यादा है, दुगुना है जनसंख्या के अनुपात में उनके। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जितने भी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, सब ब्राह्मण से हैं, और उसके साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी ब्राह्मण से। ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि कास्ट को पॉलिटिक्स से रिमूव कर देना चाहिए। ये कास्टलेसनेस की जो बात करते हैं वो पर्टिकुलरली ये जो अपर कास्ट में हैं और जो लोग जो कास्टेज़ डिफरेंट प्लेसेस पे डोमिनेंट हैं, वो लोग बात करते हैं कि हमें कास्ट को पॉलिटिक्स से हटा देना चाहिए। और जिन लोगों को अभी तक जैसे कि, और दूसरी चीज़, अगर कास्ट को पॉलिटिक्स से हटा दिया जाता है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है और जो हम कास्ट के एवोल्यूशन की बहुत सारा मतलब कि नारा बुलंद करते हैं और हमेशा झंडा ऊँचा किए रहते हैं कि कास्ट को हटाओ, कास्ट के हटाने का झंडा बुलंद किए रहते हैं, वो तब ये भूल जाइए आप कि कास्ट तब खत्म होने वाला है, अगर कास्ट को पॉलिटिक्स से हटा दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में, अनुष्का से मैं ये सहमत हूँ कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में एक बुरी चीज़ नहीं है। और जैसे कि अगर हम 1990 से पहले देखें तो हम हमारे यहाँ लोग ये कहते थे कि अगर आप अपर कास्ट के यहाँ जाएँ तो अगर वो तुम्हारे यहाँ आएँ, तुम्हारे यहाँ ऐसे, तो तुम अगर चारपाई, कुर्सी पे ये सब या खाट पे बैठे हो तो तुम्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था और उनके लिए जो है मतलब जगह छोड़ देनी पड़ती थी। ये 1990 में चलता था, और अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे डोमिनेंट प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पर अपर कास्ट डोमिनेंट है, वहाँ पर अभी ये सिस्टम जो है चला आ रहा है। अगर यही कास्ट जो है लोअर कास्ट अगर पॉलिटिक्स में नहीं घुसे होते, अगर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं की गई होती, तो क्या जो हम इस समय थोड़ी-सी जो है कास्ट वीकेन हुआ। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि जो है मतलब कि कास्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। कास्ट क्या है, इसने अपना डिफरेंट जो है रूप लिया है, अपना डिफरेंट फॉर्म्स बदल लिया है। लेकिन जो लोगों के असर्शंस हैं, जो दलित असर्शंस हैं, जो एरिस्टोक्रेसी जो है मतलब कि लोअर कास्ट के साथ अत्याचार होता है, वो क्या है पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है उनके खिलाफ जो है अत्याचार लोअर कास्ट के खिलाफ। अनुष्का
आप कह रहे थे कि कास्ट रिमूव नहीं कर सकते हम इंडिया से, अगर हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट थ्रू एजुकेशन लेके आए और फिर उससे जो ये डिफरेंसेस है, डिस्क्रिमिनेशन जितना भी हो रहा है वो सारा कम नहीं होने लगेगा? Explain me that अनुष so-called concept of equality. इक्वालिटी जैसे अगर हम स्टूडेंट्स को टीच करें कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी स्टूडेंट, वैल्यूज हाँ, क्या है। ओके अनुष्का ओके, कैन तो आई लोअर आंसर कास्ट, दिस? एक मिनट एक मिनट हाँ एक एक हितेश, करके एक एक पहले करके। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, हितेश से ही या बोलना चाहती हूँ, जो दूसरा वाला हितेश है। हाँ, जो इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो लोअर कास्ट के बच्चों को तो एजुकेशन मिलता ही नहीं है। हाँ, उस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि सबको इक्वल एजुकेशन कौन दे। करेगा फोकस? अगर आप गवर्नमेंट। फोकस कह रहे हैं ना कि आपको फोकस करना है लोअर कास्ट पे, तो डेट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। और मैं बोलूँ कुछ? नहीं, लोअर कास्ट पे नहीं, मतलब सबके ऊपर फोकस करेंगे, सबको इक्वल हितेश एजुकेशन मिले, ये नहीं आप बोलेंगे कि सबको लोअर को फोकस मिले। करेंगे तो नहीं, ये व्यू ही फ्लॉड है एक्चुअली। दिस मैं व्यू आई? इज हाउ? फ्लॉड। एक मिनट आप सब हितेश। पे कैसे फोकस करेंगे? गवर्नमेंट का तो यही वर्क होता है ना, सब पे फोकस करना। नहीं फिर दो, गवर्नमेंट आप ये क्यों थोड़ा कहती है कि, गलत हाँ समझ हितेश आप रहे हो। बोलिए। हाँ वही। हाँ, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कास्ट जो है वो जो 4 वर्ण हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है? वो सिर्फ़ 4 वर्णों में बँट जाना, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण वो सब नहीं है, ठीक है? तो नितिन ने कहा था कि वो एक अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज वे में कोई काम कर सके इसलिए गढ़ा गया था, और फिर उन्होंने उस अपने आप को ही थोड़ा गलत भी बता दिया, थोड़ा न्यूट्रल व्यू रखने के लिए। तो देखिए, कास्ट जो है वो सबने मिल बैठ के बनाई नहीं थी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बनाई, ब्राह्मण्स ने, दूसरों को ऑप्रेस करने के लिए, ठीक है? तीसरा, हमने शुरुआत में ही कह दिया कि कास्ट पॉलिटिक्स में गलत है, बल्कि उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे बात करने के लिए। तो वो भी थोड़ा मैं सोच रहा था कि गलत बात हुई। तो देखिए, कास्ट जो है हम चाहकर भी हम हटा नहीं सकते पॉलिटिक्स से, और हटानी नहीं भी चाहिए। जैसे कि अनुष्का और विकास ने कहा, मैं उनके पॉइंट्स के साथ अच्छे तरीके से सहमत हूँ। देखिए, हिस्टोरिकली देखें तो जो लोअर कास्ट है और ब्राह्मण्स या कहें जो अपर कास्ट रही हैं, उन्होंने लोअर कास्ट पे डोमिनेंस किस तरह से इस्टेब्लिश किया। एक तो उनसे रिसोर्सेज छीन के उन्हें पढ़ाई लिखाई का हक नहीं दिया गया, और बाकी जो मतलब सामाजिक रिसोर्सेज थी उनको उनका हक नहीं मिला। दूसरा, उनको पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होने दिया गया, उनको उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया कि तुम्हारा काम ही यही है इनकी सेवा करना। तो वो हिस्टोरिकली पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं रहे हैं। और समाज में आपको अगर पावर पानी है या इज्जत पानी है, तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा, अपने हक मांगने पड़ेंगे, और आपको ऑर्गेनाइज होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि पॉलिटिक्स से हम सिर्फ इलेक्शन लड़ना या किसी इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट ये वगैरह बन जाना, वो पॉलिटिक्स नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है। जब शुरुआती दौर में अंबेडकर की जो को जब हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने लोअर कास्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो जाहिर सी बात है प्रकाश ने उनको मना किया, उनका विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर उनको साफ तौर से मालूम है कि अगर लोअर कास्ट ऑर्गेनाइज हो गई, उन पॉलिटिकली एक्टिव हो गई, उनको अपने हक पता चल गए और वो पॉलिटिकल पदों पे आ गई, तो हमारी पावर खतरे में होगी, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उनकी पावर जाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर आज के समय में देखें, तो पॉलिटिक्स से हम साफ तौर पे कह देते हैं कि पॉलिटिक्स कास्टिज्म ही खराब है। तो देखिए, कास्टिज्म को हम चाहकर हटा नहीं सकते, और इसके बहुत ही गहरे मायने हैं जिनको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हम चाहकर भी हटा नहीं सकते। और जो लोग ये बात करते हैं कि कास्टिज़्म हटा देनी चाहिए पॉलिटिक्स से ही, या समाज से ही कास्ट हटा देनी चाहिए, वो पर्टिकुलरली उसी सेक्शन से हैं जिनको हिस्टोरिकली कास्ट का फ़ायदा रहा है, और वो अपनी कास्ट बिना बताए भी आज भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें किसी जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी है, तो किसी लोअर कास्ट व्यक्ति को अगर उसका फ़ायदा उठाना है जो कि उसका हक है, तो उसको अपनी कास्ट बतानी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अगर कास्ट हटा देगी तो इक्वालिटी आ जाएगी? फिर से वही हो जाएगा कि जो पर्टिकुलरली पहले डोमिनेट कर रहे थे
उनके पास क्योंकि आज भी रिसोर्सेज हैं, वो पहले फ़ायदा उठा सकते हैं, वो दोबारा वही चल पड़ेगा सिस्टम और वही उन पे फिर ऑपरेशन चलती रहेगी। तो इस पे हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। देखिए, तो सबसे पहली बात तो कास्ट हटाने की बात हो ही नहीं रही और कास्ट हटाया भी नहीं जा सकता है। जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कास्ट कैसे हटा देंगे, नहीं वो हट ही नहीं सकता है। लेकिन कास्ट हटाने को कह भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इसमें बस बदलाव करना है, इसको हटाना नहीं है। जैसे कि अब पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है और पॉलिटिक्स को बुरी चीज़ के लिए बनाया भी नहीं गया था। ये हम लोग हैं जो इसने पॉलिटिक्स को गंदा कर दिया है, जिसमें मतलब ये इतना वो घुसेड़ दिया है कि हाँ, पॉलिटिक्स कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, इस चीज़ में मत घुसना। लोग नाम से भी डरते हैं। क्यों? पॉलिटिक्स गलत चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया था, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ के लिए बनाया गया था। बुरे बनाने वाले हम हैं, तो ऐसे भी कास्टिज़्म कोई खराब चीज़ नहीं है। पहले कास्टिज़्म इसलिए बनाया गया था ताकि इस पे कर सके और जो नीचे लोग हैं जिनको उस टाइम पे वो नहीं मिलता था, समानता नहीं दिखती थी, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन अब कहीं-कहीं जाके ये समानता जनरल वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे साथ ये होता है, अब हम जनरल हैं, तो एससी-एसटी वालों को अच्छे वो बिना पढ़े पूरे साल 40-50% ले आते हैं, दोस्त उनको दोस्त दोस्त नहीं नहीं 60-70% I नहीं would नहीं love to नहीं stop you नहीं here, मैं बिना नहीं कंप्लीट पढ़े प्लीज what? वो एक नहीं, प्लीज आराम ये आराम आप से नहीं एक कह एक करके। ये सकते। कहना बहुत गलत है कि बिना पढ़े ले आते हैं ये बिना नंबर। मतलब दिस इज अ वेरी तो फ्लॉड पर्सपेक्टिव। आई वुड तो लाइक टू हाईलाइट कि उनको अपॉर्चुनिटीज देने मैं के लिए बोल लूँ, रिजर्वेशन दिया आप था। सुना है मैंने, आपको सुन लिया, बहुत अनुष्का देर तक मैंने भी सुना है, तो क्या कंप्लीट मैं करने बोल दो सकता हूँ? चंदन को, हाँ, ये उसके बाद। मेरा विचार है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को कहा है या मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ जो मैंने फ़ील किया है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने देखा है अपनी क्लास में देखा है। ये भी दूर नहीं कि क्लास में देखा है मैंने, जो दोस्त मेरे ही दोस्त थे जो पूरे दिन घूमते रहते थे और उनका हम लोग को भाई हम लोग जनरल थे, तो हम लोग को परसेंटेज भाई कट ऑफ इतनी हाई है जनरल वालों की, तो उनको भाई हम लोग को मेहनत करनी है, पढ़ना है पूरे दिन और वो लोग आराम से घूम रहे हैं। और मेरे से मेरा दोस्त कहता भी है कि यार भाई क्या दिक्कत है, एससी हुई मैं, 50-70% आ जाएगा, एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, ये वो ऐसे वैसे, और हर चीज़ में उनको, तो मतलब मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नौकरी उसको दो जो उस चीज़ के डिजर्विंग हो। ये किसी का कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई जो अगर वो बंदा एससी है तो उसको पहले मिलनी चाहिए प्रार्थना। अगर कोई भी बंदा हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे जनरल हो, अगर वो उस चीज़ के काबिल है तो वो उसको दो। अगर उस चीज़ का उसमें हक है तो वो तब दो। ये नहीं कि मतलब कास्टिज्म के तौर पे हम देखें कि यार नहीं ये बेचारा बहुत वो है तो इसको दे दिया जाए। यहाँ मुझे एक लाइन याद आती है आनंद मूवी की, जिसमें उसके पिताजी बोलते हैं कि आज के ज़माने में जो काबिल है उसी को उसका पद मिलेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो ये काबिलियत जो है हर जगह पे देखनी चाहिए। मैं कहूँगा कि कास्टिज़्म रिज़र्वेशन के अंदर बहुत गलत अमल नहीं होना चाहिए। पहले था ठीक है, अब लेकिन अब जो है कास्ट जो लोअर कास्ट थी वो ऊपर आ चुकी है। जो उनका पहले इकोनॉमिक वेल्थ था वो आगे बढ़ चुका है। सही लेकिन मैं बात है। कहूँगा कि आज का रिज़र्वेशन जो है वो रिज़र्वेशन अगर रखना है आपको तो इकोनॉमी के हिसाब से रखिए। यानी कि जो बहुत ही पुअर या पुअर सेक्शन में आते हैं उनके लिए आप रखिए ना का रिज़र्वेशन। वो लोग ना पढ़ पाते हैं, ना नौकरी कर पाते हैं, ना ही घर में रह पाते हैं, ना ही कपड़े होते हैं, उनके लिए रिज़र्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो कास्ट के लिए रिज़र्वेशन बहुत गलत है। एग्जैक्टली मैं आनंद के साथ टोटली अग्री करती हूँ। क्या होता है ना कि जो हमने कास्ट के बेसिस पे, वैसे हम यहाँ पे किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगी अपना पॉइंट कि क्या होता है कि रिजर्वेशन हम अगर कास्ट के बेसिस पे देते हैं तो जो लोग वगैरह रहते हैं वो सिर्फ वही बना पाते हैं, तो इससे वरना आपकी मतलब वॉइस वरना क्लियर नहीं आ रही। एक तो जो आपकी आवाज़ कट वरना रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, हाँ जी, कंटिन्यू करें। हेलो हेलो। जी, जी, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ वंदना, आ रही है तुम्हारी बात। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो आनंद ने कहा मैं उससे एग्री करती हूँ कि कास्ट के बेसिस पे ना होकर इकोनॉमिकली उसका बेसिस होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे मिलना चाहिए रिजर्वेशन। वैसे ये डायरेक्शन हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट नहीं था पर मैं अपना पॉइंट फिर भी ऐड कर रही हूँ। क्या होता है ना कि अगर हम रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे देते हैं तो जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो वही लोग बनवा पाते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास जो वेल स्टैब्लिश होते हैं, जिनकी कंडीशन ठीक होती है। जो सच में गरीब है या बैकवर्ड है या जिन्हें सच में ज़रूरत है वो तो बनवा ही नहीं पाते। तो अगर इकोनॉमिकली अगर इसका बेसिस इकोनॉमिक होगा तो फिर उन लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगी जिनको ज़रूरी है। जिनको ज़रूरत नहीं है
नाके अंदर नाके चाहिए ये बटन चाहिए और हमें सोच तो फिर सोचने से वरना आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वरना फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। वंदना, यू आर नॉट ऑडिबल। नेक्स्ट कोई कंटिन्यू करना चाहे तो। देखो, ये जो बात की जा रही है कि इकोनॉमी के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए कि रिजर्वेशन देना चाहिए, और कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देना जो है मेरिट का काबिलियत की अवहेलना है, काबिलियत को ऑफेंड करता है। इस बात से मैं टोटली एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ और पोलाइटली डिसएग्री करता हूँ। ये जो कहा जाता है कि इकोनॉमी के बेसिस पे दिया जाए, और क्या होता है कि जो लोअर का, और ये भी जाता है कि ये मेरिट के खिलाफ है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग अपर कास्ट मतलब कि जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं, वो लोग अपर कास्ट की तुलना में, जनरल की तुलना में जो लोग रिजर्वेशन से नहीं आते हैं, उनसे कई लाख गुना ज़्यादा काबिलियत होते हैं, कई लाख गुना ज़्यादा उनके अंदर मेरिट होती है। और ऐसी बातें कहना मतलब कि देखो, एक ग्राउंड रियलिटी होती है। ये कहा जाता है कि जैसे कि आनंद ने कहा कि वो लोग घूमते रहते हैं। देखो भाई, ये कहना कि क्या होता है कि एक अपर कास्ट है और एक लोअर कास्ट है, और अब भी आप देखिए कि क्या होता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा सब नहीं उठा पाते हैं। लोअर कास्ट में भी रिजर्वेशन का फ़ायदा वही उठा पा रहे हैं जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, और जिनको कंडीशन थोड़ी बहुत सही है कि वो परिवार जो है क्या करे कि एजुकेशन पे जो है ध्यान दे पाए। और रिजर्वेशन मिली ही कहाँ है? पूरे जितना भी मतलब कि जॉब्स हैं, 98% जॉब पे रिजर्वेशन है ही नहीं। 2% केवल जॉब्स हैं उस पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है? और 2% जॉब में इसमें भी रिजर्वेशन मिला है, वो भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हम कहेंगे, इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन कहेंगे लोअर कास्ट के लिए। क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं लोअर कास्ट को, तो क्या होगा कि वो लोग जो लोअर कास्ट हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, तो वो अपने आप को एलिनेटेड फील करेंगे और जैसे हैं उसी स्थिति में पड़े रहेंगे। और दूसरी चीज़ जो ये बात बार-बार कही जा रही है कि हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो है मतलब क्या करना चाहिए, रिजर्वेशन देखना चाहिए। तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, और आप गूगल करिए और हर जगह मतलब सर्च करिए, और ये जाके देखिए कि कितने परसेंट ओबीसी, एससी जो लोअर कास्ट हैं, उन लोगों के पास कितना रिसोर्सेज हैं इन कंपैरिजन टू अपर कास्ट। अपर कास्ट में अगर हम देखेंगे तो 95% वेल ऑफ नज़र आएँगे, 95% वेल ऑफ नज़र आएँगे। उनका जो मतलब क्या रहेगा, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास लैंड्स होंगे अच्छे, जिससे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें कि अगर मान लीजिए कि लोअर कास्ट के पास किसी पर्टिकुलर जो सबसे मतलब कि गरीब होगा, उसके पास तो मतलब कि लैंड्स भी नहीं होंगे, कोई रिसोर्सेज ही नहीं होगा। लेकिन जो अपर कास्ट है, जो कहते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे रखा जाए, उनके पास एट लीस्ट लैंड्स होगा, और वो जो है क्या होंगे, कंपैरेटिवली लोअर कास्ट के वेल ऑफ होंगे, चाहे जो भी हो। चाहे मतलब कि अच्छे जो है, अगर हम देखा जाए तो जो वेल ऑफ की कैटेगरी डिफाइन करें, यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा रायता-सा फैल जा रहा है। ये है कि अगर आप देखें लोअर कास्ट और अपर कास्ट, इसमें क्या है कि जो 1% मतलब कि जो क्या है कि वो भी एलाइड सर्विसेज में गए, वो अपर कास्ट के जो सबसे गरीब हैं उनसे ऊपर हैं। बाकी अपर कास्ट के जो सबसे गरीब लोग, जो अपर कास्ट में सबसे गरीबी की श्रेणी में आएँगे, इकोनॉमिकली लो नज़र आएँगे, वो क्या होंगे कि वो किसी भी कंपैरेटिवली जो है लोअर कास्ट से अच्छे ही होंगे। ये मेरा जो है मतलब कि व्यू है। और इकोनॉमिक पे जो है मतलब कि ये कहा जाना कि अगर हम जो है उसको रिज़र्वेशन दें, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के अगर बेसिस पे भी रिज़र्वेशन देंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोअर कास्ट का जो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है, वो नहीं हो पाएगा, और उसके साथ ही साथ फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर कास्ट का डोमिनेंस हो जाएगा। क्योंकि हमने जो है इकोनॉमिकली जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंदर जो क्राइटेरिया रखा है कि इकोनॉमी के बेसिस पे
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया रखी, उसमें हमारी 95% पॉपुलेशन जो है को रिजर्वेशन मिल जाएगा। 95% पॉपुलेशन को अगर हम जो क्राइटेरिया रखें ईडब्ल्यूएस के लिए सब उसमें आएंगे, तो बचेंगे केवल 5%। तो अगर इकोनॉमी की क्राइटेरिया पे हम रिजर्वेशन देंगे तो 95% को चला जाएगा रिजर्वेशन। उसमें क्या होगा कि फिर से वही अपर कास्ट डोमिनेंस हो जाएगी और फिर से लोअर कास्ट जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये इकोनॉमी क्राइटेरिया जो है अगर रिजर्वेशन देते हैं तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर अपर कास्ट डोमिनेंस आएगा और लोअर कास्ट जैसे हैं वैसे रह जाएंगे और उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। विकास, काफ़ी अच्छे पॉइंट बताया तुमने, मैं सबसे सहमत हूँ। दूसरा एक बात जो वैसे हम जो हमारा मुद्दा था उससे काफ़ी भटक चुके हैं, नहीं सिर्फ भटके कास्ट नहीं पे हैं, हम भटके नहीं हैं, हम लोग अपने भटके मुद्दे नहीं। से हाँ, कहीं नहीं भटके हैं। मेरा जहाँ तक नहीं, क्या है वो कि देखो, कास्ट नहीं, रिप्रेजेंटेशन की बात कास्ट और नहीं जेंडर कास्ट, के पे बात करनी थी ना हाँ वैसे हमें। कास्ट एंड जेंडर पे बात नहीं, करनी है, हाँ, लेकिन हम चलो लोग चलो ठीक है। जो है भटके नहीं, क्योंकि क्या है कि देखो कास्ट के खिलाफ केवल यही एक दो तीन आर्गुमेंट्स आते हैं हाँ, सही कि बात है। कास्ट के खिलाफ की पॉलिटिक्स में कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन सबसे ज्यादा हमारा जो आर्गुमेंट्स आता है कि जो है इसको नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि इसी के इर्द गिर्द सारा जो है मतलब हमारी पॉलिटिक्स घूमती रहती है कास्ट। और देखिए, जब हम ये रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं तो लोग जनरली ये बात कहते हैं कि हमें इक्वालिटी लानी चाहिए और सबको बराबर कर दें और ये हटा दें रिजर्वेशन। तो देखिए, रिजर्वेशन हटाने से कोई बराबरी नहीं आएगी, बराबरी बल्कि ज- अ, जो अभी कोशिश हो रही है बराबरी लाने की वो भी नहीं आएगी। रिजर्व मुझे लगता है कि वो हाँ चला गया, हितेश चला गया, वो वही टैप हो गया बल्कि डिस्कनेक्ट हो गया होगा उसका। कोई ज्वाइन और किया। कंटिन्यू, एनीवन? अभी कंटिन्यू कर सकते। Uh, Actually, everyone is raising their points. It's very effective. But what are the solution for this? I mean, government of India is granting like in an election from a particular area. This time, a candidate from scheduled caste should contest there. The eligibility criteria for a participating in the elections is he must be from the scheduled caste. So हेलो। how far it is correct? Like एक मिनट हितेश, नितिन को कंटिन्यू कीजिए। how far it is correct? Maybe there is a great and effective leader from upper caste, but at the same time there is no one, literally no one, who is eligible to be a representative from the scheduled caste or some scheduled tribe. So is this rule or is this somewhat is this correct? I'm asking the panel. So how can you justify this? एक बार रिपीट करोगे नितिन, आखिरी पॉइंट क्या क्या? कैन यू रिपीट नितिन लास्ट वर्ड? Okay. Actually, this time panchayat elections, in my village especially, it is like a member, someone from the scheduled caste are only eligible to participate in these elections, not from others. So the eligibility criteria to participate in that election is the person must be from scheduled caste. So my question is, what if there is no one effective from the scheduled caste and there is a well and good and popular leader from the upper caste as a representative who is worth the representative, but there is no one, literally no one from the scheduled caste is not good. So what do we do? Is that correct? I mean, is this justifying someone? Like, I'm asking that. हाँ दोस्त, ये थोड़ा आपने पता नहीं, थोड़ा बीच में मेरा डिस्कनेक्ट। ग्लिच आ रही है हितेश आपके माइक में थोड़ी। इससे आपका हेलो नेटवर्क कट रहा है। हेलो, यस यस। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो हाँ जैसा कि नितिन कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसको क्यों ना दी जाए। Yeah, तो पहली बात तो देखिए, आप किसी की काबिलियत पे शक कर रहे he is having some serious network issues, I think. और कोई आंसर करना चाहेगा? हम करते हैं। हो। हितेश आ गए, हितेश कंटिन्यू। हाँ, तो उनको मौका ही नहीं मिला है और जब मौका दिया जा रहा है तो आप फिर यही बातें कर रहे हैं, तो मुझे इस पे थोड़ा हंसी भी आती है और रोना भी आता है।
Hitesh, I didn't get it. Someone can say it in English. बता दो यार कोई ट्रांसलेट करके प्लीज. अनुष्का ट्रांसलेट कर सकती हो. What was your point actually? मुझे ना नितिन का question भी नहीं सुनाई पड़ा because of network issues, and I wasn't able to hear Hitesh also. So Anushka, I'm asking that. See, we are seeing the reservation issue, reservation thing in politics even. Like I bought the example from my own village. So this okay. time, it is the only eligibility criteria that someone from the scheduled caste is only eligible to contest in the Sarpanch elections, not from any others. So my question is, if there is someone who is effective, and even the people from the lower caste also admire the person, a upper caste leader, and he is the worth the sarpanch post, but at the same time there is no one, literally no one from the scheduled caste who is eligible No, for that post. you are asking no one from that. I'm not able to hear. Just a second. I'll join again. Actually, Nitin is saying कि suppose there is a sarpanch election, panchayat election, and the seat is reserved for scheduled caste or scheduled tribe. But someone from the scheduled caste who is matlab competing the election, they are not matlab, they are not that good as a upper caste candidate. So what should we do in that case? So Hitesh is saying to your question, Nitin, कि they have not got the opportunity. So if they are getting it now, why you're questioning it? Why you're questioning their capability, their capacity? Let them perform. So this is the answer to your question by Hitesh. uh, okay, if that's the case, I want to raise a point. As people we are living in the same village, we know how the persons are. Even from the scheduled caste itself, they don't want to contest in the election. They want the person who is from the upper caste, who always takes care of them, want to be the leader. So then what is the case? Even the scheduled caste members also satisfied with the ruling of that upper caste leader. Even the upper caste leader also take care of the scheduled caste, because it is not like that every upper caste leader is not taking the care of scheduled caste members. It's not correct. Sometimes the upper caste, not sometimes, many, in most of the, in more, not most of the cases, not. So there are some leaders who always take care of the minority communities too. So what if that case, even the scheduled castes are also satisfied with the previous leaders and all, and now the government is saying particularly that the scheduled caste member must be the leader from that constituency, but there is no one, literally no one. Like in my village the scheduled caste is only like very less members. So what is that case? ऐसे में मैं एक मानता मिनट. हूँ कि उनको तो नितिन ये कह रहे हो कि जो अपर कास्ट के लीडर्स है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके समझते हैं और उनके रूल बनाते हैं. ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपर कास्ट का बंदा एक लोअर कास्ट के पर्सन्स को या फिर किसी को इतना रिप्रेजेंट करे नैरो और मत उनके लिए हो प्रोटेक्शन आए. आतिश. No, एक there मिनट, can be इतना an नैरो मत एक exceptions, मिनट, एक मिनट, Atish. एक मिनट, मुझे इतना बोलने नैरो दो, माइंडेड मत हो. मुझे बोलने दो, एक मिनट बोलने दो. एक पर्सन जो अपर कास्ट का है, जो हमेशा से प्रिविलेज रहा है, जो उसे उसे पता नहीं है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है लोअर कास्ट की, वो ग्राउंड पे वर्क कर नहीं सकता, पहली बात. दूसरी बात, और वो वर्क करता भी है तो वो सोसाइटी से बाउंड है, उस अपर कास्ट सोसाइटी से बाउंड है, क्योंकि यहाँ पे अपर कास्ट इतना ज़्यादा मतलब एक एरिया को लेकर रिस्ट्रिक्टेड है कि वो अगर कुछ वर्क करता है, जो अगर किसी वे में अपर कास्ट के खिलाफ जाते हैं तो वो सोसाइटी के सोसाइटी मतलब जो अपर कास्ट सोसाइटी है वो उसके अगेंस्ट जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट जाएगी एक तरह से. तो कहीं कोई भी पर्सन एक अपनी पूरी सोसाइटी से जिस हिसाब से जुड़ा पड़ा है या फिर कम्युनिटी से जुड़ा पड़ा है उसके अगेंस्ट जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे वे इतनी तरह से मतलब जुड़ चुके हैं, यहाँ पे कास्ट इतनी बुरी तरह से इकट्ठा हुआ है कि अगर जाता है तो वहाँ से मतलब एक तरह उसको असाइड कर दिया जाता है, बिल्कुल कास्ट से और सोसाइटी से असाइड किया जाता है, और कोई नहीं चाहेगा कि हमको असाइड कर दिया जाए. तो वो एक उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके अंदर बाउंड बना होता है कि हमें इतना ही करना पड़ेगा, और इसकी एक बाउंड्री लाइन होती है. तो वो किसी भी तरह से फुली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ना ग्राउंड रियलिटी पढ़ा है और वो ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं है. पहली बात, वो सिर्फ इस बेसिस पे चल रहा है क्योंकि वो थ्योरी में क्या पढ़ा है या फिर क्या सुना है या क्या देख रहा है, उस चीज़ पे उसे ग्राउंड रियलिटी उसने ना फेस किया है, ना उसे ये वो एक तरह और उस सोसाइटी के साथ बाउंड है, अपर क्लास सोसाइटी के साथ, तो वो किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा इसके. तो मुझे नहीं लगता कि एक अपर क्लास बंदा एक लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है. Nitin, I would love to translate the whole whatever Atish said in one line. Only the wearer knows where the shoe pinches. That's all. The upper But caste can never represent. okay, I got What? the point. I got the point. But Atish, what you're saying is that
it's not happening in nowadays. Like in a village there is of course imagine there is a population of 1500 and there is sometimes like 4 to 5 colonies, and there is no way that any member is not knowing about any other. In these days there is no such relevance like एक a मिनट एक person. मिनट एक मिनट नितिन नितिन नितिन, इसको मैं आगे बताना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो कि विलेज में ऐसा नहीं होता, तो आपको ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि विलेज का जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये बेसिस इसका है कि कास्ट के बेसिस ही है। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को देख ले, चाहे वो एक कंबाइंड हो या फिर स्पेक्ट्रल हो, जो कास्ट क्या चलता है कि अगर कंबाइंड देखोगे तो मिडल जो एरिया होता है सेंटर, वो अपर कास्ट के लिए रिजर्व होता है, और जो धीरे धीरे कास्ट लो होते जा रहा है और वो आउटसाइडर जो कास्ट है उस हिसाब से बना होता है, एक होता है बिल्कुल अलग रखा जाता है, स्कैटर में बिल्कुल उनको बाहर रखा जाता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, ये तो है ही नहीं कहीं भी। बिल्कुल आतिश आइए आप बिल्कुल ये आतिश। देखो, ये जो ये कहना है कि अच्छा है कि साथ रहते हैं, सॉलिडरिटी रहती है। हम लोगों के बीच में क्या है कि जो मतलब कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब मौका पड़ेगा ना कि अगर कोई फेस ऑफ हो गया ना, तो उनको ऐसे उनकी जात को एज ए गाली यूज करके हम क्या करेंगे कि उन्हें उनका ऑपरेशन करते हैं, और उनका ऑपरेशन होता चला। और दूसरी चीज़ ये कहना कि जैसे नितिन ने कहा कि वो अच्छा नहीं है, ये मेरे हिसाब से एकदम खराब परसेप्शन है। हम अपना जहाँ तक अनुभव बताते हैं कि अभी तक मैंने जो है मैं एनालिसिस कर पाता हूँ कि हमारे मतलब कि ग्राम सभा में क्या है कि हमारे विलेज में अभी तक अपर कास्ट, मिडिल कास्ट और एससी शेड्यूल्ड कास्ट से लोग जो है क्या है कि सरपंच जो है चुने गए हैं। लेकिन मैं उसमें एनालाइज़ करता हूँ कि अगर सबसे अच्छा, अगर गाँव के विकास के लिए किसी व्यक्ति ने सबसे अच्छा, किसी सरपंच ने सबसे अच्छा काम किया, तो वो पर्सन ने काम किया जो पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करता था। और अपर कास्ट वाले जो थे, पर्टिकुलर जो मिडल कास्ट वाले थे, उन्होंने क्या किया कि केवल और केवल अपनी झोली भरी है। और अपर का जो लोअर कास्ट का था, उसने क्या किया कि जो चाहे वो अपर कास्ट के लोग रहे हों, चाहे वो लोअर कास्ट के लोग रहे हों, जो जिस हिसाब से डिज़र्व करता था, जिसको जिसकी ज़रूरत थी, उसके अकॉर्डिंग उसने सबके लिए काम किया था। और ये कहना गलत होगा, जैसे इसने मतलब कि हाँ, नितिन ने कहा कि वो क्या है कि वो इतना अच्छा नहीं है। एक बार तुम उनमें से मौका तो दे के देखो कि अच्छा है कि नहीं है। उनको एक बार फ्रीली छोड़ो कि वो अच्छे हैं कि नहीं, उनको काम करने के लिए एक बार अच्छे से छोड़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये अच्छे हैं कि नहीं। अगर आज के बाद अगर तुमको अगर मान लो शेड्यूल कास्ट से अगर आज कोई मतलब चुन लिया जाता है, तो देख लेना कि 5 साल बाद तुम्हारे गाँव के जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका जो मतलब कि क्या रहेगा स्टेटस, तुम लोगों से कुछ न कहीं अगर हमें लो तो रहेगा, लेकिन पिछले 5 साल के कंपैरेटिवली कहीं न कहीं जो है अच्छा हो जाएगा उन लोगों का। उन लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन होते रहेंगे, वो थोड़े कम हो जाएँगे। उसके साथ ही साथ उनके जो मतलब कि उनकी इश्यूज़ से जो रिलेटेड काम रहेंगे, वो हो जाएँगे, और उनका कहीं न कहीं जो अगर ये वो लोग चुन लिए जाते हैं, हो जाते हैं, तो क्या होगा कि उस पूरे होल कम्युनिटी का जो है फ़ायदा हो जाता है। नितिन, Anushka, Anushka, Anushka. विकास Okay, go एक on. yes, मिनट, नितिन। हितेश कंटिन्यू करो। ना Anushka, can you say that? मेरे को एक हाँ, क्वेश्चन he just पूछना wait, है। wait. Just एक for 1 minute. मिनट एक मिनट। Anushka, I'm here. can you say that what is, I mean, but just I give you this. Vikas mentioned that point which I mentioned earlier. He said that your view is very flawed. That casteism is not in villages. Actually, the village is the base of caste in Indian society. And if we have the question you asked, if we have representation from upper caste for scheduled tribe, that will be for the scheduled caste. That will be a flawed representation. Because only the wearer knows where the shoe pins, and upper caste can never be a good representative of NSC or ST. okay, but it is about the local right, because I mean we are from the South India, so that's not the case where we have faced the crisis like those caste crises. Even in our villages, it's not like that the SCs or STs completely denied by the leaders or something. Even the many times, as my mother is a government employee, there are no such rises of the issues even. But I'm saying this is like an an ideal situation. I'm giving the example of an ideal situation. What if this situation happens, if there is no, if even the people from the minorities also want someone from the um, majorities as a leader, like they have been treated very well in the previous occasions and all, and they didn't see someone as a good and all,
So what is the situation? Like even the government insists someone from the minority community should take the ruling or something, but even the people are not happy with that, as they didn't see someone candidate even. yeah, Nitin, I got your point. विकास एक And मिनट मेरा okay, okay, नितिन, okay. जो आपकी जो सिचुएशन है इसमें आप क्या लोअर कास्ट की कम्युनिटी की कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रहे हो या नहीं, मतलब डिग्रेड कर रहे हो उनकी जो कैपेबिलिटीज है? Hitesh, can you say it in English? Yeah, I was saying that the situation that you put forward, in that case you were degrading the capabilities of the minority or lower caste. I'm not saying that. It is vice versa. You have to get it. Yeah, I yeah, mean, there are the yeah, situations where people from the majority community is also not eligible for that, and the people from the minority communities are eligible from that. It is vice versa. That happens. It is the ideal conditions that may happen, that may not be happen. I am asking, what if may happen? Then there is no situation like that. Even yeah, something. then that in that But case Nitin, I you think, answered your question only yourself only, because we are here to discuss the reality. We are here to discuss the influence of caste in Indian politics, and you are talking about an ideal situation, quote unquote, which any situation doesn't exist like an ideal situation. The reality is we can never separate the caste, and we shouldn't separate the caste from Indian politics, because caste is the representation of lower caste in Indian politics. So this is an ideal situation which is not possible. और Actually, और uh, जो ये नितिन कह रहे हैं कि क्या है कि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट है वो क्या करें कि लोअर अपर कास्ट से अपना कोई लीडर चुनना चाहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है क्या वो अपर कास्ट से जो है कोई अपना लीडर चुनना चाहते हैं। तो यही तो कास्टिज्म है, यही तो कास्टिज्म का नेचर है। वो क्या है कि हमेशा कंसेंसस बना के चलते हैं कि देखो हम अच्छे हैं, हम तुमसे अच्छे हैं, अगर तुम हमारे पोजीशन में आ जाओगे तो तुम क्या है जो है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे से गाँव के लिए सोसाइटी के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, हम रहेंगे तो हम ही अच्छे से कर पाएँगे। यही हमारी जो कास्ट का नेचर है, यही जो कंसेंसस मेकिंग है, इसी चीज़ को जो हमें रिमूव करना है और जो दलितों और शेड्यूल कास्ट जो लोअर कास्ट है उनमें ये विश्वास दिलाना है कि नहीं तुम भी कैपेबल हो, तुम भी कर सकते हो। यही जो है का मतलब कि कास्टिज़्म जो है इसी चीज़ को रिमूव करना है कि नहीं अपर कास्ट ही अच्छे हैं, हम ये हमारे बस की ये बात नहीं है। इसी धारणा को और इसी मिसकंसेप्शन को हमको तोड़ना है। कास्टिज़्म को यही जो है यही कास्टिज़्म का नेचर है जिसके दम पर जो है अपर कास्ट हमेशा जो है क्या करते आए हैं, डोमिनेट करते आए हैं हमारे यहाँ। मतलब कि अपर कास्ट का पॉलिटिक्स में हमेशा डोमिनेशन रहा है, पावर्स में डोमिनेशन रहा है, सोसाइटी में डोमिनेशन रहा है। बट आई विकास, एग्री जो विकास। जो सिचुएशन नितिन ने बोला उसमें उसने ये नहीं कहा कि जो अपर कास्ट का पर्टिकुलर लीडर है जो रिप्रेजेंट करना चाहता है वो कह रहा है कि तुम कैपेबल नहीं हो या ऐसा कुछ। वो नितिन तो ने ये जो कहा वहाँ के लोग नितिन हैं ने वो ये कहा उसने पर्टिकुलर indirectly जितने एक भी brainwash मिनट लोग करा हैं है वो वंदना। कह रहे हैं ना, एक मिनट कंप्लीट करने वो दो यार लोग उसे, वो लोग कंटिन्यू कह करो। रहे हैं ना कि जो जो जिसके लिए सीट रिजर्व हुई है वहाँ उस कम्युनिटी का जो कोई भी है वो बेटर नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लीडर बनने के लिए, बल्कि जो अपर कास्ट का है वो बेटर है, उसको मौका मिलना चाहिए। वो लीडर थोड़ी कह रहा है कि मुझे मौका मिले और जिसके लिए रिजर्व है सीट उसको ना मिले। और तुम्हारे ग्राम सभा में अगर अपर कास्ट के उस सरपंच ने अच्छा काम नहीं किया तो उसके बेसिस पे सबको तो जज नहीं कर सकते ना कि जितने भी अपर कास्ट के लीडर्स हैं वो ठीक काम नहीं करते। बिल्कुल वंदना। वंदना, जो विकास ने एक पॉइंट बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ब्रेन वॉश है, जो लोअर कास्ट को ये मतलब हमेशा से बताया जाता है कि यू आर नॉट केपेबल टू रूल, यू आर द सब्जेक्ट, तो ये ना उनके माइंडसेट हो जाता है। तो उनको ये लगने लगता है कि वी आर नॉट एबल टू रूल आवरसेल्फ, वी कैन नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, वी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स। सो दैट्स व्हाई अगर वो अपर कास्ट वाला वो बोलता भी नहीं है, वो वोट मांगता भी है नॉर्मली, अगर वो उनसे ये बोलता भी नहीं है, तब भी उनकी उनके माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम रूल नहीं कर सकते हैं। And Janvi, you want to say something? देखो, स्टार्टिंग से द होल कास्ट सिस्टम वाज इनिशिएटेड, या कह सकते हो इट इमर्ज्ड फॉर स्मूथ सोशल फंक्शनिंग। सबको वर्क डिवाइड कर दिया गया ताकि सोसाइटी में अच्छे से सब कुछ काम चले। बट धीरे धीरे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, द ऑपरेशन स्टार्टेड, अपर कास्ट जो है उसको पावर का भूख चढ़ गया और उसने लोअर कास्ट का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। उनको धीरे धीरे से मजा आने लगा, दे स्टार्टेड गेटिंग फन आउट ऑफ दिस। बट अब जो है पीपल आर मतलब गेटिंग मोर अवेयर ऑफ ऑल दिस, एंड उसके बाद रिजर्वेशन आया, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशंस आए,
और आई थिंक सिचुएशन अब धीरे धीरे सही हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली सही हो चुकी है, द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर। बट जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, वो लोअर कास्ट में मैंने जहाँ तक देखे हैं रिजर्वेशन वही लोग यूज कर रहे हैं जो वेल ऑफ हैं, जो छोटे कास्ट में वेल ऑफ हैं वही रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं। जो रिजर्वेशन जिनको पहुंचना चाहिए उनको पहुंच ही नहीं रहा है। अगर हम अपने कॉलेज के एडमिशन्स की बात ले लें, हमें चाहिए था एलएसआर, हमें एलएसआर मिल जाए, आया हमारा 97, कट ऑफ गया जनरल का 100। अब हमें लगा अब तो हम गए, हमारा ड्रीम कॉलेज था एलएसआर, लेकिन आया 100 कट ऑफ, मेरा आया 97% और मेरा नहीं हुआ। सेकंड कट ऑफ में क्योंकि मैं जनरल थी, सेकंड कट ऑफ बंद हो गया, कहीं एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद मुझे डीसीएससी में ही एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन वही ओबीसी एससी एसटी की बात करो तो सेकंड कट ऑफ में फिर मेरिट गिरी, थर्ड कट ऑफ में मेरिट गिरी। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, जबकि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी जिससे मेरे दोस्त पढ़े, हम लोग का सही सेम ही एजुकेशन हुआ, लेकिन मुझे डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया क्योंकि मैं पर्टिकुलर कास्ट से आती हूँ। हाँ, ये बात सही है कि पहले हमने किया है, मतलब हमारे कास्ट वालों ने छोटे कास्ट पे ऑपरेशन किया है और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, थोड़ी गलत बात है। लेकिन अगर आपके साथ जो हुआ है वही आप हम लोग के साथ फिर से करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसे करके आप बहुत अच्छा करेंगे, सोसाइटी में बहुत सब कुछ सही हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि ये सही रहेगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है तो उसके लिए बेसिस भी सही होना चाहिए, जस्टिफिएबल होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए। जैसे विकास बार बार कह रहे थे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज नहीं है तो हम इकोनॉमिक बेसिस पे करते हैं, क्यों कास्ट के बेसिस पे कर रहे हैं? और जैसे कि आपने कहा कि जो छोटे कास्ट उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज, तो इससे तो उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा। तो बेटर होगा कि हम इकोनॉमी पे कर दें, कास्ट को हटा दें। कास्ट पॉलिटिक्स से तो कभी नहीं हटने वाला, ये तो एक यूटोपियन आपका वो है, ड्रीम है, अगर आप सोचते हैं कि कास्ट हट जाएगा। कास्ट हमेशा यहीं पे रहने वाला है, किला जमा कर अपना कास्ट हमेशा रहेगा। लेकिन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कास्ट का नेचर क्या होगा, कास्ट को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस कैसे यूज करते हैं कास्ट को, यूज करते हैं वोट्स गेन करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है ये सही है, ऐसे ही मिलेगा, ये ऐसे ही रहेंगे सत्ता में। आते हैं सत्ता में, फिर एक कास्ट पे पूरा ध्यान चला जाता है उनका। जब वोट्स लेने रहते हैं तो एक कास्ट पे पूरा ध्यान रहता है उनका, स्कीम बनाने तो एक कास्ट पे पूरा ध्यान रहता है उनका। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसे करके आप उनको वेल ऑफ कर देंगे तो ऐसे कभी नहीं होने वाला। लोअर कास्ट हमेशा ऐसे पीछे रह जाएंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे तो। जानवी, जो आपने एग्जांपल दिया कि आपका ड्रीम कॉलेज ELSR था, तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो ओबीसी थे और उनकी कट ऑफ नीचे चली गई, वो चले गए। तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दूंगा कि जो लोग कहते हैं कि सेम कॉलेज से पढ़ें, सेम सिचुएशन क्या होता है कि अब और हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये कहना गलत है, क्योंकि अब जो है हम देखते हैं कि जो EWS का जो लाया गया है, इकोनॉमिक बेसिस लाया गया है, जो इकोनॉमिक्स बेसिस की बात की जा रही है, अगर उसके बेसिस पे आप अगर रिजर्वेशन देना शुरू कर देंगे, जो क्राइटेरिया रखी गई है कि 8 लाख इनकम होनी चाहिए और उसके साथ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि 8 बीघा यानी 5 एकड़ जो है मतलब कि लैंड हो, उससे ज़्यादा लैंड हो, तो क्या होंगे कि आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे, तब आपको इकोनॉमी के बेसिस पे जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर उससे कम है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 95% लोग क्या होंगे इस कैटेगरी में आएंगे जिनको रिजर्वेशन मिल जाएगा इकोनॉमिक बेसिस पे। और जब ये कैटेगरी हम ला देंगे कि जो कैटेगरी डिसाइड की गई है, तो इसमें क्या होगा, फिर से वही अपर कास्ट डोमिनेंस स्टार्ट हो जाएगा और लोअर कास्ट डोमिनेंस जो है शुरू हो जाएगा, अगर इकोनॉमिक बेसिस पे लाया जाता है। Uh, तो केवल continue, Vikas, continue. तो केवल जो है जो ये कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन आया है, इसमें क्या किया है कि जो इकोनॉमी है उसने क्या किया कि जैसे क्या होता है कि जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है। जैसे क्या है कि बिहार में क्या है, एससी के अंदर 2 गुट हैं, दलित और महादलित। सेम चीज़ वही कास्ट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इम्पीरिकली देखें और इम्पीरिकली देखें तो क्या हो रहा है कि कास्ट यहाँ पर ये रोल प्ले कर रहा है कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली बेसिस पे जो है क्या है कि लेसर हैं, कम वेल ऑफ है, उनको क्या किए हैं कि देखो हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। ये कास्ट बेसिस है, ये अलग अलग कास्ट है जो इकोनॉमिकली भी कम वेल ऑफ हैं, सोशली भी डिसप्रिविलेज हैं, और उसके अलावा क्या है कि ये लोग जो है एजुकेशनली भी बैकवर्ड्स हैं।
ये हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। और इकोनॉमी इसमें जो है इम्प्लिसिट है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी होती, जैसे क्या है कि हम जो रिजर्वेशन दिया गया 2 बेसिस पे दिए गए, सोशली और एजुकेशनली जो लोग बैकवर्ड्स हैं, अगर उनकी कंडीशन जो है इकोनॉमिकली अच्छी होती, तो क्या जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते? ये क्वेश्चन होगा जानवी आपसे। और अगली चीज़ कि जो मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखो क्या है कि ये मैं बार-बार और एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि रिसोर्सेज़ का अभाव है, लेकिन फिर भी अपर कास्ट जो है, अगर हम देखेंगे कि जो सबसे गरीब अपर कास्ट होगा, वो जो है लोअर कास्ट जो अच्छे होंगे, जो जिनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ हैं, उनके कहीं ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिलेगा। और एक बात फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा कि 98% जॉब में कोई रिज़र्वेशन है नहीं, 2% जॉब में रिज़र्वेशन है, प्लस उसके साथ इसमें भी अब क्या आ रहा है, प्राइवेटाइज़ेशन आ रहा है। तो प्राइवेटाइज़ेशन जो आ रहा है, तो जो रिज़र्वेशन है, वो यहाँ पे मतलब डिसरिज़र्वेशन हो रही है। रिज़र्वेशन को एक तरीके से यहाँ पर अ, खत्म किया जा रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या करना कि जो है प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए खत्म किया जा रहा है। और जो नियो लिबरल पॉलिसी आई है, जिसका कि मतलब कि जो है अपर कास्ट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। वही लोग ये बोलते हैं कि देखो कास्ट नहीं सही है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन जो है अच्छी चीज़ है, और उसके साथ ही साथ वही लोग मेरिट की बात करते हैं। तो और जो लोग ये कहते हैं कि देखिए क्या है कि जैसे कि जो 97% था, जिसका जो है मतलब कि 90 से तुम्हारा 97% था और जिसका उससे कम था, उसने क्या हुआ कि एलएसआर में जो है उसका एडमिशन हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो है, उसने जितने कमेंट्स और जितने मेंटल ट्रॉमा झेले हैं, अगर उतने तुमने झेला होता तो शायद तुम्हारा 97% नहीं आता, उससे कम आता। मैं ये श्योर हूँ। ये इतना नैरो माइंडेड तुम लोग, एक तो पहले इस पूरा डिस्कशन का जो भी वो कंक्लूजन निकल रहा है बहुत नैरो माइंडेड है। सब एक ही पर्टिकुलर आप ग्रुप को सपोर्ट किए जा रहे हो। यहाँ पर आप बार बार अपर कास्ट को ऐसे कह रहे हो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तुम नहीं झेल पाते, तुम्हारे साथ ऐसा होता तुम वो नहीं कर पाते। नहीं हो मतलब पाता ऐसा जानवी। आप हमेशा क्वेश्चन कर रहे हो अपर कास्ट को हर चीज में कि आप अब करेंगे तुमने ये क्वेश्चन, भी कमेंट करेंगे आपने ये क्वेश्चन। भी कमेंट किया था एक बार। विकास उसको आपने ये बोलने भी दे। आपने ये भी कमेंट किया एक बार कि जो ज्यादा मेरिट वाले हम मुझे लगता है लोअर कास्ट ही होते हैं ज्यादा मेरिट वाले। ऐसा कुछ है नहीं। अ, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, गलत हुआ है लोअर कास्ट के साथ। मतलब बहुत पीछे बहुत गलत हुआ है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनको छोड़ दो, क्या उनको ले आ रहे हो, ऊपर क्यों उठा रहे हो, जैसा है वैसे चलने दो, मैं इस चीज के उसमें नहीं हूँ। लेकिन अगर आप सेम चीज अब वही करने लगे हमारे साथ, हमें पता है उतनी हालत हमारी खराब नहीं हुई अभी, लेकिन वही चीज अगर हमारे साथ होने लगे, हमारे कास्ट की वजह से पीछे हम लोग रह जाएं, तो फिर तो बात तो वही हो गई ना। फिर कहाँ से आप इक्वालिटी और पता नहीं किस किस चीजों की बात करते हैं। ये सारी बात ही विडंबना हो जाएगी। तो इक्वालिटी ऐसे कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं हमारी सोसाइटी में। और एक I और want to पॉइंट add मैं something. Uh, ऐड करना चाह रही हूँ। later. Okay, Vandana, I can add a later. ओके। तो विकास आपने कहा कि जब रिजर्वेशन जब हम देते हैं तो फिर उसमें हम इकोनॉमिकली कौन कितना वीक है ये फैक्टर भी उसमें इंक्लूड होता है। तो जब जानवी ने ये कहा था कि हम सेम स्कूल से थे और फिर उसके बाद उनके कम मार्क्स के बाद भी वो चले गए, उनको एलएसआर मिला और इनको नहीं, उनके कम मार्क्स के बावजूद भी उनको एलएसआर मिल गया और इनको नहीं मिला। तो अगर वो सेम स्कूल अफोर्ड कर सकते थे तो फिर वो कहाँ से इकोनॉमिकली वीक हुए? वो भी तो उतना उनके पास भी तो रिसोर्सेस उतने थे ना कि वो सेम स्कूल में थे। और ये भी, और मैं खुद भी देखती हूँ इतना तो कोई मेंटल ट्रॉमा अभी वो नहीं झेलते, भले पास्ट में जो भी हुआ है लेकिन अभी तो वो इतना देखो मेंटल देखो और ये ट्रॉमा जहां गलत है। तक बात है एक मेंटल ट्रॉमा की जहां तक बात है, सबके अपने अपने मेंटल ट्रॉमा है। सिर्फ एग्जैक्टली। कास्ट ही एक चीज नहीं है, बहुत सारी देखो हम चीजें जिनके बताते हैं। बेसिस पे या एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर पे देखो हो रहा है, एक चीज हम कलर पे हो बताते रहा हैं। है, बॉडी पे हो रहा है, हर चीज पे मेंटल ट्रॉमा लोगों को सहना पड़ रहा है। तो प्लीज आप कास्ट को एक वैसे मत दिखाइए कि हमारे कास्ट की वजह से हमें पीछे कर दिया गया, हमारा कास्ट बहुत ही अच्छा है, मतलब हम किसी चीज के लायक नहीं है। ऐसे ना दिखाया जाए। जैसे आप लोग को जैसे दिखाया गया है पीछे पीछे, वैसे अगर आप हमको भी दिखाने लगे तो फिर आप में और हमारे में कोई फर्क ही नहीं रहा। देखो एक चीज हम ये कहना चाहते हैं कि सेम स्कूल से आए हैं और उसको एलएसआर मिल गया, हमको एलएसआर नहीं मिला। तो हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है, और काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो यहाँ पर क्या है कि रिजर्वेशन के थ्रू क्या है, एससी और एसटी आ जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर अपर कास्ट, मिडिल मतलब कि ओबीसी सब लोग जो है आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं
गर्ल्स को भी जो है 33% सीट्स रिज़र्व है हमारे यहाँ। तो हम देखें कि हमारा एक दोस्त है, वो एससी से बिलॉन्ग करता है। तो क्या हुआ कि जब हम लोग क्लास 9वीं से 10वीं में जाने लगे तो हम लोग के उसमें मतलब बोर्ड हो गए थे 10वीं में। तो क्या हुआ कि बोर्ड का प्रेशर लोगों पे पड़ा तो ये सोचा गया कि अच्छा चलते हैं, जो लोग अच्छे थे, फैमिली से अच्छे से जिनके पास पैसे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, बनारस कोचिंग करने जा रहे थे। क्रैश कोर्स करने 2 महीने के लिए जा रहे थे, नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशली जो है बनारस की कोचिंग सफ़र करती हैं क्रैश कोर्स। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त जो कि एससी क्लास से बिलॉन्ग करता था, उसके पास पैसा नहीं था। वो सोचा कि अगर हम क्रैश कोर्स कर लेंगे तो क्या होगा कि कुछ कोचिंग जो क्या कराती हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट कराती हैं, तो मेरे को थोड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा और हम जो है क्या करेंगे कि इसमें जो है आ जाएँगे। तो हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोग को घर से पैसा मिल गया और जो भी अपर कास्ट है, उन लोगों को पैसा मिल गया, वो लोग आसानी से चले गए। लेकिन उस लड़के को क्या करना पड़ा कि वो गाँव में गया, गाँव में अप्रैल का समय था उस समय, गेहूँ की मड़ाई हुई थी और 10 लोगों के घर से भूसा ढोया, उसके बाद जो है उसके पैसे जो घर से कम मिले थे, वो पैसा जो है मतलब घर से वो कम पड़ा, उसका जो कंपनसेशन उसने किस तरीके से किया कि 10 लोगों के यहाँ से जाके भूसा डोला, मज़दूरी किया और अब भी घर जाता है बनारस में रह के जो है मज़दूरी करके, जो है बनारस में जाके रहता है 1-2 महीने, फिर आता है 10-15 दिन मज़दूरी करता है, जो पैसा बचता है वो जाके पढ़ता है। तो अगर इसको रिज़र्वेशन कास्ट बेसिस पे रिज़र्वेशन नहीं मिला, तो क्या वो आगे जा पाएगा? और दूसरी चीज़ जो बार-बार की कही जाती है कि हमारे यहाँ जो मतलब कि क्या है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऑपरेशन हुआ, ये सब गलत चीज़ है। ये जो हम कई ऑपरेशन बार की ये बात फिर से नहीं Okay, okay, कह रही हूँ okay. मैं। वो देखो ऑपरेशन यहाँ का और बात सिचुएशन बस वेरी बस करती है। बस बस तो ये रिजर्वेशन क्या रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है कि जो है मतलब कि जॉब दिया जाता है और तुम अभी जाके देख लो कि जो व्हाइट कॉलर जॉब है सबसे ज़्यादा किस कास्ट के लोगों ने लिया है। ये जाके जानवी एक बार फिर से गूगल कर लो, ऐसे से सर्च कर लो, डाटा कलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद बताओ किस कास्ट के लोगों ने सबसे ज़्यादा व्हाइट कॉलर जॉब लिया है और सफाई कर्मी जो होती है एक जॉब होती है उसमें कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा डोमिनेंट हैं? ये भी बता देना तुम मुझे। I want to add something. Just I'm asking, what is, do from everyone minorities really deserve that reservation? Like, um, for example, just imagine a family from minority. um, a guy have a guy have cracked something like UPSC. He became an IAS officer and he married. He have kids now. So now his son really deserve that minority reservation. Again his son is getting that reservation, he is becoming an scheduled caste member or scheduled tribe member. Again that is happening. Now he got access to all the resources, even education, clothing, food, everything. He has now everything, but still he gets the reservation like scheduled caste or scheduled tribe. Again he gets into the college or something like services and all through the reservation. So what I'm asking is, minorities still need reservation, but at the same time there are some minorities who still doesn't need reservation. So what about them? It's like somewhat misusing of the reservation, doesn't need it. So for example, I have to give an example that I have installed the Clubhouse a couple of weeks before. In this meanwhile, I have received 3 updates. But Constitution is something that is driving the 130 crore people. But how many changes we are witnessing, like day to day, time to time? The time is changing globally, globalization. Everything is changing at fast moment, at the fast pace. But how often we really witness those changes according to the time, like this? My question is, still, yes, I agree with that, still many minorities need reservation, but at the same time there are some minorities who still doesn't deserve any sort of minor reservation or something and all. What about them? Why government or some judiciary and all, why are they not implementing any move towards that? मैं आई यस विकास। तो ये जो कहा जाता है कि इसने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हम उनको जो क्या रिजर्वेशन देते हैं, ये गलत चीज़ है। ये एक गलत कंसेप्शन है कि वी आर गिविंग रिजर्वेशन टू द माइनॉरिटीज़। बेसिकली वी आर गिविंग रिजर्वेशन टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। हम जो है क्या है कि मेजॉरिटी को जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं और ये हमारे यहाँ कहा जाता है डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि क्या होता है कि अपर मेजॉरिटी डोमिनेट करती है, लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी डोमिनेट करती है
और दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, रिजर्वेशन ऐसे देते हैं कि जो लोग जिस पॉपुलेशन से हैं, जो भी जातियाँ, जो भी मतलब कम्युनिटीज़ जिस रेशियो में हैं, उनको इस रेशियो में जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन दे दो। अगर रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, तो जो कम्युनिटीज़ मतलब कि जो लोग इंडिया में जितने परसेंट पॉपुलेशन में हैं, हर 10 साल बाद उनका सर्वे कराओ और उनको इसी बेसिस पे रिजर्वेशन दे दो, मैटर खत्म। क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है और इसमें जो मेरिट की बात की जाती है और मैं एक बार फिर से ये पॉइंट दोहराऊँगा कि मेरिट कहीं ज़्यादा अच्छी होती है उन लोगों के पास, जो है, ये एक फ्लॉड नेचर है कि चलो जो है मैं उन कुछ लोग कहूँ क्या? मेरिटिशियस नहीं होती। हाँ, कहो। हाँ, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन बहुत ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। एक बात बताइए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नमेंट के सामने पेश किया है बिल कि हमारे को रिजर्वेशन चाहिए। महाराष्ट्र में जितनी भी जॉब्स हैं उन सब में उनको रिजर्वेशन चाहिए। उसके अलावा कुछ साल पहले गुजरात में पटेल्स ने आंदोलन किया था कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, जो कि 19 लाख के आसपास हैं पटेल्स गुजरात के अंदर, उनको रिजर्वेशन चाहिए। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी जाट ने आंदोलन किया, उन्होंने रिजर्वेशन लिया भी। साथ ही अपने राजस्थान के अंदर भी रिजर्वेशन के लिए चले आंदोलन, ठीक है? मगर चलते रहे आजकल भी कहीं ना कहीं चले रहे गाँवों के अंदर रिजर्वेशन। हर एक जगह पे हर एक कम्युनिटी हर कोई अपना रिजर्वेशन चाहता है। तो मुझे बताइए कि राजपूत ब्राह्मण्स वो कहाँ जाएंगे आगे आने वाले समय में? उनके लिए बचेगा क्या कि वो करेंगे? देखो, राजपूत ब्राह्मण को जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जाके उठा ठीक है, के इस नहीं समय है। देख लो, एक बार ठीक है, देख ठीक लो, है। एक बार देख लो कि जो आगे आगे मैं सेक्रेटरीज़ हैं बोलता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 कॉन्फिडेंस से मिनट, मत 1 मिनट। बोलो। ये बात मेरे एक पहले मिनट। डाटा देख लो ना, डाटा देखे नहीं जाती है, क्या होता है कि ठीक है एक बार भाई डेटा जा जान। नहीं, उठा के मैं देख लो एक्चुअल जितने भी देखो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, जितने भी चलो जॉइंट चलो। सेक्रेटरी लेवल पे हैं, वो किस कास्ट से हैं? तुम भैया फाइनेंस वो मिनिस्ट्री में सब जाकर देखो 6 के 6 जो मतलब कि सेक्रेटरीज़ हैं, वो क्या है मिनिस्टर सहित जो है ब्राह्मण हैं। कोई इसमें हाँ क्या हाँ जो ठीक है है। शेड्यूल हाँ, कास्ट आखिर वो में? because I क्यों don't है? agree with आप सोचो that. ना, आखिर वो क्यों है? क्योंकि वो काबिल नहीं, आखिर वो अपने एजुकेशन से बड़े हैं ना। आपके पास रिजर्वेशन होने के बाद भी काबिल आप नहीं उस है, पद पे क्यों नहीं काबिल नहीं है, पहुंचे? काबिल नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से रिसोर्सेस था, वो पहले से वेल ऑफ थे, इसीलिए उनको जो है मतलब वो पढ़े और उनको जो है मतलब क्या हुआ कि वो लोग क्या हो कि उस पोजीशन पे पहुंच गए। अगर यही चीज़ें क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो कि लोअर कास्ट हैं, अगर उनको आप एजुकेशन दो, तो वो क्या उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी जो है मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलरली लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको क्या है कि अभी भी एजुकेशन नहीं मिला है, तो इस वजह से उनको जो है मतलब रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये कहा जाना कि जो है कि वो क्यों एजुकेशन नहीं प्राप्त करें? अगर आपको पेट के मतलब पेट पालने के लाड़े पड़ेंगे और आपके पास घर में खाने को नहीं है और आप जाके बोल के कह दो कि भैया आप जाइए, पढ़ने जाइए, कैसे कोई पढ़वाएगा बताओ? आपका अगर पेट ही नहीं भरा रहेगा। कहते हैं कि ना ये कि अगर पेट भरने के लिए ही मिड डे मील का पॉलिसी लाया गया था, जिसकी वजह से अ, एजुकेशन में बहुत भी क्रांति भी आया आनंद था, वो पता हो तो। वो मिड डे मील आनंद की पॉलिसी जो लाई गई वो स्कूल मतलब कि प्राइमरी स्कूल्स में लाई गई और प्राइमरी स्कूल की क्या सिचुएशन है, हाँ, ये क्यों जाके लाई आप गई देख थी? आप सकते हैं। बताइए क्यों लाई गई थी? कि बच्चे ये स्कूल इसलिए जाएँ लाई गई भूख की इसलिए वजह लाई से। गई थी देखो, एक एक इसलिए करके लाई यार, गई एक एक थी करके यार। विकास इसलिए थोड़ा लाई गई। ओके, ओके, ओके। हितेश देखो को बोलने दो। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि देखिए मतभेद है, मेरा किसी से मनभेद नहीं है, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मिड डे मील का जो लाया गया था वो पेट भरने के लिए लाया गया, मानते हैं पेट भरने के लिए लाया गया, कुपोषण को दूर हटाने के लिए लाया गया। और क्या और सिचुएशन ताकि है प्राइमरी प्रमोट भी स्कूल किया गया था कि और बच्चे क्या स्कूल जाएँगे सिचुएशन खाने के लालच में। हाँ, क्या सिचुएशन है प्राइमरी स्कूलों की ये जाके देखो, केवल जाते हैं, खा के चले आते हैं बच्चे वहाँ पे, अच्छा घर पे सुनो, उनको तो एक मेरी मतलब कि मेरा ये मानना है, जैसे कि मान लो रिजर्वेशन मिल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम उस बात नहीं करेंगे किस बेसिस से मिलना चाहिए किस बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप 2-3 जनरेशन को मिला, फैमिली वेल ऑफ हो गई, उसके बाद से उस फैमिली को अब रिजर्वेशन ना मिले, क्या इस बात से तुम लोग सहमत हो? उसके बाद जानवी डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होती है। नहीं, वो नहीं वैल्यू कितना भी ये पैसा सहमत कमा ले, पर आप रिजर्वेशन में आप है। फॉर एग्जाम्पल ये इस पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है जिसको रिजर्वेशन मिला है, बट जो उसके बच्चे हैं आप कैसे कह सकते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में जब वो सरनेम देख लेते हैं या वो जो चीजें देख लेते हैं ना उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो आप मानते हो कि रिजर्वेशन से खत्म मुझे हो रहा है? लगता हाँ है नहीं, कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, खत्म होने रिजर्वेशन वाले है ही उनका नहीं। रिप्रेजेंटेशन है, जो उनके खिलाफ रिजर्वेशन इज अत्याचार हो रहे थे, रिप्रेजेंटेशन। जानवी जो उनके ऊपर पहले से ठीक है। अत्याचार हो रहे थे ना, वो खत्म हो रहा है रिजर्वेशन की वजह से। और देखो दूसरी जानवी, चीज मैं मैं तुम्हारी बस बात लास्ट से में ना कुछ ऐड बिल्कुल करूँ? एग्री करती हूँ। मेरी गाइस एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक करके यार, एक एक करके।
आनंद मैं कुछ कंप्लीट करो लास्ट आगे। में ऐड करना चाहूँगा ज़रा। हेलो। कंटिन्यू हाँ आनंद। बोलो आनंद। ठीक है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये सब इसी वजह से है ताकि हम सब पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने अंदर जो ये गलत सोच है रिजर्वेशन या फिर कास्ट को लेकर, वो हटाने के लिए है। ये ब्राह्मण्स के लिए, हर किसी के लिए, यहाँ तक कि मैं, मेरे घर में हर कोई इस बात को नहीं मानता। हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं, अपर कास्ट में बहुत, लेकिन हम कास्टिज़्म को नहीं मानते। और वाह वाह अक्सर आगे वाह। बढ़ना दोस्त चाहते क्योंकि हैं। दोस्त आप दोस्त प्रिविलेज्ड हैं आनंद, ये जो एक व्यू मिनट, है ना, अरे एक मिनट रुको अनुष्का, ये जो अनुष्का। व्यू है, गाइस वेट दोस्त वेट कास्टिज्म से उसका मतलब है डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। या उसके अलावा लिसन, मैं खुद अपना जो ब्राह्मण धर्म है या फिर मेरी जो कास्ट है, उसको मैं हटाने के लिए नो रिलीजन रो कास्ट का मैं सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ खुद। मैं नहीं चाहता किसी कास्ट में रहूँ, किसी रीजन, किसी स्पेसिफिक को मुझे बोल सके। ये जो एग्जाम्पल लेते आपके हैं। अंदर मेंटालिटी बनी हुई है, ये गलत है। आप पढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपने अंदर भी सोच बदलो, और जो और भी सोसाइटी है उनके अंदर जब सोच बदलेगी ना, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं चाहते ये। पॉइंट यही है यही ना है। कि खत्म हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि कास्ट का इतना बड़ा मतलब कि चला कि अभी देखो, जाके देख लो जो है, हर जगह पे जो है कास्ट डोमिनेशन। उत्तर प्रदेश में जो है हम बताएं कि 2017 में 75 डीएम में 72 जो है, 72 या 74 जो थे, वो क्या थे, पर्टिकुलरली ब्राह्मण ठाकुर, इन दो जातियों के अलावा कोई नहीं था। ये थी हकीकत कास्टिज्म का, कास्ट का नेचर का। अगर जिस दिन से हमें ये लगने लग जाएगा, और जो ये कहा जाता है कि कास्ट को हटा दो, यही सोच के जो है क्या हुआ कि ओबीसी के लोग अभी भी तो 2019 तक, 2014 के बाद से लगने लगे कि कास्ट को हटाओ, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को पहले रखते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि की पॉलिटिक्स बहुत घटिया चीज़ है, गंदी चीज़ है, कास्ट से हम अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। और क्या करते हैं कि एक विकास, और जो है मतलब क्या होता है कि देश सेवा, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनते हैं। लेकिन उनके बाद से, आने के बाद से जो है, ये जो पर्टिकुलरली ओबीसी एससी है, इनका फिर से ऑपरेशन, इनके खिलाफ अत्याचार और दलितों के खिलाफ अत्याचार फिर से शुरू हो गया। और ये जो कास्टलेसनेस कही जाती है ना, ये मेरे हिसाब से अपर कास्ट का ये एक तरीके से फिर से एक, जैसे कि पहले ये वर्ड लाया गया था कि हिस्टोरिकली ये लाया गया है कि देखो, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही केवल पढ़ेंगे और जो है बाकी और कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक उसी तरीके से ये है कि कास्टलेसनेस को हटाओ, और इससे क्या होगा कि जो है हम देश का अच्छे से विकास होगा। इससे क्या होगा, देश और गर्त में जाएगा, और मतलब कि क्या होगा कि इनइक्वलिटीज और ज़्यादा खराब हो जाएगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और कास्ट जो है हमारी सोसाइटी से कभी नहीं हट सकता। यार एक बात कहूँगा यार, काफ़ी पॉइंट्स रिपीट हो रही है, तो क्वेश्चंस जो हो रहे हैं उसको ध्यान से देखो यार। मतलब लगभग हर सारी पॉइंट दोबारा रिपीट हो रही है, क्योंकि हमारे पास जेंडर भी है और टाइम भी कम है, तो जेंडर को भी देखना है। यस प्लीज। आनंद आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैं बस ये कहूँगा कि हर कोई मतलब कि रिजर्वेशन के काबिल नहीं है। हर अब एससी एसटी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनमें कुछ ही ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन वाले होंगे जिनको ज़रूरत है, और हर बात पे हम ऐसे लड़ नहीं सकते, हमको खुद समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे ब्राह्मण समाज में, हमारे गांव के अंदर ही मैंने कितनों को देखा है, झुग्गियों में रहते हैं, क्या उनके लिए एक रिजर्वेशन नहीं बन सकती फिर? इसीलिए कह रहा हूँ, इकोनॉमी पे देखिए ना आप जरा एक बार। जनसंख्या पे देखिए ना एक बार, जनसंख्या पे देखिए, जनसंख्या, लिसन, देखो ये ना जनसंख्या एवर, नहीं, ये आप देखो, पॉपुलेशन ये के हिसाब देखो, से देखिए। एक ये मिनट। नेवर एंडिंग डिबेट है विकास आनंद, ये नेवर एंडिंग डिबेट है। जो इकोनॉमिक की तो बात कर रहे हो ना, इसको कई बार क्लियर कर चुका है। जैसे विकास ने भी कहा था कि क्लियर जी हमारा जी। अगर लिसन, इकोनॉमिक में देखें तो 95% इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नीचे आ जाएगा, और हाँ हाँ ठीक है। 95% को रिजर्वेशन दे देते हैं, तो जो ऊपर वाले हैं जिनके पास रिसोर्स है, सिर्फ वही ले पाएंगे रिजर्वेशन का फायदा, लोअर्स वाले ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या हाँ फायदा, मैं जब समझ हम रहा हूँ, ठीक लोअर है को ठीक है। ऊपर उठा ही नहीं पाए, तो हम क्या फायदा हमें देने का रिजर्वेशन से।
मैंने इकोनॉमी ये नहीं कहा कि आप जो कि जिनके पास 5 बीघा या 8 लाख की इनकम उनके लिए अपनी रिजर्वेशन रखिए। क्या आप सर्वे नहीं कर सकते जिनके पास बिल्कुल ही नहीं, जिनके पास घर भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, उनके लिए दें? ये सब नहीं देख सकते। आप डायरेक्ट बोलते हैं कि 8 लाख का पूरा सेक्शन का एक मार्जिन बना हुआ है, इसके नीचे जो आएँगे उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ऐसे नहीं होता। रिजर्वेशन के लिए आप पूरा एक सर्वे कीजिए, जो लोग आते हैं उनको दीजिए और स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे कि 1.5 लाख या फिर 1 लाख से नीचे जिनकी इनकम है, जिनके पास घर नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन रखिए। आनंद, हम ये कहते हैं कि जो लोग क्या है कि जिनकी जितनी पॉपुलेशन है, जैसे अगर ब्राह्मण 10% है तो उनको 10% रिजर्वेशन ब्राह्मण को दे दो। अगर जो है दलित जो है 15% है, उनको 15% दे दो। एससी 7% है जनसंख्या के हिसाब में, उनको 7% रिजर्वेशन दे दो पब्लिक सेक्टर में। खत्म डिबेट हमारी। वाओ! ऐसा क्यों मतलब नहीं कि हो फिर सकता? वही काम ऐसा करना है आपको। ऐसा क्यों नहीं हो सकता बताओ? Okay. मतलब क्यों? विकास, काबिल मैं बोल रहा हूँ ना कि आप काबिलियत को देखिए ना, आप फालतू में काबिलियत रिजर्वेशन कैसी क्यों काबिलियत उठाना? यार? काबिलियत अगर आप कैसी पढ़ यार? सकते हैं आप ये तो मेरे पढ़िए ना, आगे एक बढ़िए। ये मेरिटिस की कैसी बात हुई? फिर हम एक बार फिर से वही चीज रिपीट करेंगे। विकास विकास प्लीज अब एक पर्सन जेंडर डिस्कशन Okay, स्टार्ट guys. करना Okay, है, okay, ये okay. रहने। 1% जिसको जिंदगी भर हेलो। हर चीज मिला है, हर चीज का मौका मिला है करने का, और 1% जिसको कुछ नहीं मिला है या फिर मिला भी है तो थोड़ा मोड़ा, और उन चीजों को आप जब एक बराबरी की बात पे तौलने आए, नौकरी की बात पे, या वहाँ पे उस वक्त पे आप बराबरी पे तौल रहे हैं और पूरे सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ पास्ट में या उसको मौका मिला है हर स्टेप पे कि नहीं देख रहे हैं, और एंड में जाके आप सीधे तौल रहे हैं कि हम बराबरी के तराजू पे तौल दें, तो वो कैसे सही है? हेलो। तो यस मतलब कि हितेश। आप बस यही कहना चाहते हैं ना कि अभी हमको आगे बढ़ाओ, जो ब्राह्मण या फिर जो उचित कास्ट है उनको नीचे लाओ बस। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, होता है। जरूरी नहीं यार। चलो Hello. ठीक देख है, सुनो, भाई, लिसन लिसन हम ये अपर नहीं कास्ट गाइस, को कह रहे नीचे वी हैं। क्यों, शुड लोअर कंक्लूड, वी कास्ट को शुड ऊपर लाने कंक्लूड। की बात कर आतिश, सकते हैं। विकास, Guys, हितेश, guys, आनंद, guys, guys. Stop. अब हम कंक्लूड करते हैं। दिस इज अ नेवर नहीं एंडिंग यार, डिबेट। जेंडर अभी बाकी है यार, जेंडर पे थोड़ा फोकस करो। जेंडर पे बात यस करते हैं, वही अनुष्का, मेरा प्लीज फोकस है। थोड़ा जेंडर पे बात हाँ, कर लें। जेंडर पे बात करते हैं। सो I अभी एनीबॉडी वुड लव टू पिच इन कास्ट है ये ऐसा हाइलाइटिंग द टॉपिक, जेंडर? गर्म हो जाते हैं सब। Can we organize gender in other day? I mean, एक्चुअली लेट हो हाँ गया। ठीक है, मैं ऐसा करना चाहूँगा इसके ऊपर। but गो yeah, I अहेड want to आनंद। conclude. I want to conclude reservation. According to me, reservation is something like रिजर्वेशन वाज नॉट द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ कास्ट, या क्योंकि वहां जेंडर। पे फिर बहुत गर्म डिबेट होगी नितिन। yeah, okay. एंड तो जेंडर जेंडर पे हम स्विच करते हैं करते हैं जेंडर ना। पे। जेंडर आनंद स्टार्ट कीजिए, बोला आनंद जाए। स्टार्ट करो। देखिए जेंडर जो है बहुत ही मतलब कि बहुत वाइड टॉपिक है। मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि अ, महिलाओं को लेकर या फिर जो औरतें उनके प्रति मेरा जो सोच है बहुत ही खुला है। मतलब उनके सपोर्ट के लिए, उनके लिए जो भी हो सकता है मैं हमेशा करता हूँ। बल्कि अपने घर के अंदर भी अगर मेरी बहनें जीन्स पहनना चाहती हैं, पहन सकती हैं, और उनको व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट चलाना सब चला सकती हैं। वही मेरे फादर वो अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं उनको खुद अपना उनका अकाउंट बनाकर देता हूँ कि हाँ, बना चलाओ, सब कुछ करो, आपकी बहुत लाइफ में बढ़िया जी दोस्त। सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे आते हैं ना कि जेंडर भी फिर राजनीति के हिसाब से होने लगती है। जैसे कि अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार का। यहाँ पे जेंडर मतलब कि जो औरतों का वोट है डायरेक्ट जाता है नीतीश कुमार को, और किसी को जाता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स कर रखी है जेंडर के हिसाब से। यहाँ पे मतलब कि कोई वो नहीं देखा जाता कि एजुकेशन मिल रहा है लड़कियों को, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं देखा जाता। बस आप स्कूल आओ, आपको फ्री में किताबें मिलेंगी, आपको साइकिल मिलेगी, वही वहाँ पे मेल के लिए कुछ नहीं है। मेल के लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मेल की किताबें भी नहीं मिलती स्कूल्स के अंदर। यहाँ पे मैं खुद पढ़ चुका हूँ बिहार के अंदर, मेल्स को किताबें नहीं मिलती, ओनली फीमेल्स को मिलती हैं। फीमेल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उनको और भी चीज़ें So you मिलती are हैं, लेकिन suggesting, I would नहीं love नहीं to counter right now कि you are suggesting that girls should not be given education, हेलो that there मैम, should be। आई एम नहीं नहीं लेट मी नहीं नहीं, कंप्लीट, तुम लेट गलत मी समझ रहे हो नहीं कंप्लीट, नहीं नहीं। अनुष्का। लेट मी कंप्लीट। नहीं वो I'm बोलने दो, asking बोलने from दो। वो him। सुनो वो नहीं, सुनो तो जो क्वेश्चन है जैसे वो मैं कह रहा जेंडर हूँ का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, हाँ, तो प्लीज इस वही पे हम लोग जेंडर रहें। रिप्रेजेंटेटिव, उसको उस हाँ पे हाँ, रहे वही प्लीज। वही मैं Feminism कह रहा नहीं, हूँ, वही मैं feminism कह रहा नहीं. हूँ। उसको लिसन, कंटिन्यू मैं वही करना था, कह अरे रहा एक हूँ बार। कि उन्होंने जेंडर मतलब कि जो वोट बैंक है ना, वोट बैंक को टारगेट किया। एजुकेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वोट बैंक को टारगेट किया उन्होंने। आनंद, हेलो। हाँ, कंटिन्यू यू आर करो ऑडिबल। क्षितिज, आ रही है भाई। आनंद यार, तुम ना बाद में मेरे को अपना बर्थडे बताना कब आता है, मैं तुमको एक एनालिसिस ऑफ कास्ट और एक फेमिनिज्म की कोई अच्छी सी किताब गिफ्ट करूंगा, ठीक है। जी जरूर करना मुझे। अ, दूसरा, अरे देखिए, जब कास्ट और जेंडर की बात करते हैं हम, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिस हिसाब से मतलब सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और ओप्रेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किया है, ये हम सब मानते हैं।
ठीक है, तो जब कास्ट और जेंडर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक नई फोर्स को जन्म देते हैं, जिस हिसाब से पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ होता है और जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स हमने डिस्कस की, और अब हम जेंडर पॉलिटिक्स जब डिस्कस करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वुमेन्स हैं उनका रोल सोसाइटी में क्या देखा जाता है। तो कास्ट के हिसाब से वुमेन का रोल देखा जाता है कि वो जो कास्ट है मेरा बॉय हमेशा बीच से चला जाता है बोलते वक्त। हाँ शायद किसी और को कुछ बोलना है रिलेटेड मुझे ये टू बोलना है जेंडर। कि ये जो जेंडर का ये जो टॉपिक है, वी विल डिस्कस दिस हेलो अनदर डे आतिश, क्योंकि इट इज ऑलरेडी वेरी लेट एंड इट या इज अ होल न्यू टॉपिक ना। इसमें Yeah, it फेमिनिज्म भी has to be आएगा, fresh. पेट्रियार्की भी आएगी और इसमें सब कुछ आएगा। तो आई विल से कि वी विल डिस्कस दिस। हितेश, आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं अपना पॉइंट, बट आई एम सेइंग कि हम किसी और दिन इस पे बात करेंगे फिर। मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? And also one thing, Hitesh, लाइक स्टार्टिंग sorry, में हो गए थे हितेश। like because से गूगल पे सर्च करो नोट्स का, I don't know Hindi, so yeah, prepare the notes, make the points, and be fresh for this topic, gender in politics. Like it seems like it has got very less to deal with it, but it's a way depth into the nature. I mean, as Hitesh said, it is a new force. So yeah, Hitesh, you can proceed with your topic. I mean, something you were saying. तुम बोल रहे हो किसी और दिन कर सकते हो, तो हाँ तो अभी खत्म करते हैं, अभी मतलब अभी अभी स्टार्ट तुम्हें करेंगे कुछ तो फिर बोलना है तो कंटिन्यू बोल होता देते जाएगा। फिर। ये हर हाँ, संडे को नहीं नहीं क्या? क्लब हिताश, हाउस पे रखेंगे। क्लब हाउस पे हर हितेश संडे को, अभी रहने बाकी देते समय हैं। भी हाँ हर संडे को तो रखते हैं क्योंकि एक लोग थक जाते कंक्लूजन के हैं। तौर पे कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ हितेश बोलो को कमरू बोलो। जी, हाँ जरूर। जरूर। तो जैसे कि हमने कास्ट पे डिस्कस किया, तो कास्ट है ही ऐसा टॉपिक, गर्मा गर्मी हो जाती है कई बार, तो जाहिर तौर पे वो भी हुआ, पर काफ़ी अच्छी डिबेट थी। पर कुछ वही घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स सदियों से चले आ रहे हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। और देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। क्लब हाउस जैसे ऐप पे, स्मार्टफोन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये काफ़ी मतलब प्रिविलेज्ड हैं हम, और कास्ट जैसे टॉपिक पे। और मतलब जो असल असल तौर पे कास्ट से भुगत रहे होंगे, वो अभी कहीं शायद मजदूरी कर रहा हो। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है। तो फिर बेस्ट है। वो ओके भी आ गाइस, फिर जाएगा, I एंड करें। guess। चलो तो हाँ, एंड मुझे करते हैं। अगर किसी किसी को को भी कुछ कंक्लूजन कंक्लूजन में कहना है तो वो कह बोल सकता है। सकता है, बाकी फीडबैक भी दे सकता हाँ, है। जैसा अभी हितेश हाँ, बोल के गया, पता नहीं उसका पॉइंट क्या था, पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो ये कहना चाहता है कि हम प्रिविलेज्ड हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे इस इशू को हेलो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हाँ वो यहाँ कुछ पे हितेश। बोल यार, गलत नहीं था। पाएगा, इस बार कहाँ हुआ था मैं डिस्कनेक्ट? वहीं पे प्रिविलेज है हम सब, मतलब कोई बंदा काम कर रहा होगा अभी। हाँ अच्छा ठीक है। तो क्या नाम यार, भूल गया मैं। वो कोई हाँ बंदा तो मजदूरी कर रहा होगा और हम उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ये हाँ था तो आपका शोषण लास्ट को पॉइंट। समझने के लिए शोषित होना जरूरी होता है। एक मर्द कभी नहीं समझ सकता कि एक औरत किन पीड़ाओं से गुजरती है। ठीक है, वैसे ही हम नहीं समझ सकते कि कास्ट के तौर पे एक व्यक्ति को क्या क्या झेलना पड़ सकता होगा। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, न्यूज़ में देख लेंगे, पर वो जो एक असल फीलिंग होती है वो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते चाह कर भी। तो उस पे हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है उनके प्रति। और हमें चाहिए कि हम जो समाज में पीछे रह गए हैं दबके, उनका हाथ थामें, उनकी मदद करें। और ये रिजर्वेशन की बात आती है जो, तो हम जैसे कईयों ने ये बात कही कि जिनको चाहिए उनको मिल नहीं पाता, तो हमें चाहिए कि उनको मिले, उसकी एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। ना कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि रिजर्वेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि समाज एक शरीर है, इसमें एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो तो ये अपाहिजता की निशानी है, कोई स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है। तो इसमें चाहिए कि जो एक हाथ स्वस्थ है वो दूसरे हाथ की सहायता करे, ताकि जो समाज है वो एक अच्छी। ठीक अच्छा। हेलो हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। यार, कोई नहीं। ये मेरे साथ कोई नहीं इसी कोई ऐप नहीं। पे होता है, वैसे ठीक चल जाता है नेटवर्क। तो मतलब ठीक है यार, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा बात करके वैसे। मैं कुछ बोलूं जी कंक्लूजन? हाँ, जानवी। या हाँ श्योर। चलिए। जो नेता हैं या राजनेता हैं जो हैं, वो
सिर्फ कास्ट को यूज़ करेंगे अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए। असली काम जो करना है वो हम जैसे, आप जैसे विद्यार्थियों को ही करना है। जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं वही कुछ चेंज ला सकते हैं। और हमें इन राजनेताओं पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति से रोटियां सेकेंगे। जो हमें क्या करना है कि हम अपने लेवल पर जो वंचित हैं इन सब चीज़ों से, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अब कास्ट को लेकर ज़्यादा सेंटिमेंटल हम लोग को नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हो चुके थे वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब लोग को मिलकर काम करना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ एज अ कंक्लूजन।